Good morning, students. How are you all? Hope you are fine at your home. Students, जो प्रीवियस वीडियो था वो था हमारा ग्रामर टॉपिक का आर्टिकल्स एंड साइलेंट लेटर्स वर्ड. Students, I hope you understood what are articles, where we use articles, and what are the rules of some particular articles. Yes, I told you before, article means determiners. See, in previous video I told articles, there are two types of article, indefinite articles and definite article. Indefinite article a or an, and definite article it's the. And see, articles, an article is a word that comes before a noun. In previous video I told you same कि what is article. Yes, an article is a word that comes before a noun. And see, some rules are there when we are using article or when we are placing article before the nouns. Yes, articles के कुछ rules होते हैं जो हम जब हम articles का यूज़ करते हैं तो उस समय हमारे माइंड में क्या होता है, हमें नाउन्स का क्या देखना पड़ता है, नाउन्स कैसी है, सिंगुलर नाउन्स है कि प्लूरल नाउन्स है, नाउन्स किस साउंड से स्टार्ट हो रही है. तो ये सब हमारे माइंड में रख के ही हमें आर्टिकल प्लेस करने चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अब सीजिए द है ना, दिस इज़, अब इसमें भी समटाइम्स वी आर टेलिंग द एंड समटाइम्स इस दी एंड द. सो ये देयर आर सम पर्टिकुलर रूल्स कि यदि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे टी एच ई लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, और वोवेल साउंड के आगे लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या लगता है. तो सम कन्फ्यूजन आर देयर फॉर यूजिंग ऑफ द. ओके, सो आइडेंटिफाई of a specific person, place or thing. Yes, before this video या previous video I told you कि दा का यूज़ जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के आगे ही यूज होता है. द बॉय प्ले बॉल है ना, द बॉयज आर प्लेइंग, तो कोई भी बॉय खेल सकते दो, बट द बॉय प्ले बॉल, जो हम किसको पर्टिकुलर कर रहे हैं कि वो बच्चा बॉल से खेल रहा है. सी, ए goes before a word that begins with a consonant sound. I see a B. Here B is a B sound. It's a consonant sound. So we place here A. Then N goes before a word that begins with a vowel A, E, I, O, U. A, E, I, O, U sound. Okay? See, some rules are there in before previous video, and in homework I have sent some rules of articles where we place a, where we plus n, where we place the. Indefinite article a or n. See, a or n. A or n are first, a or n are used before singular nouns. Okay, a or n are called indefinite articles because they are used to refer to something in a less specific manner. Use a or n to identify nouns that they are not definite and not specific. Think of a or n as meaning any and one among many. Yes, देखिए बच्चों, I told you कि मैंने a और n का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर नाउन्स के लिए और वन थिंग, ओनली वन थिंग के लिए ही यूज़ होगा. यदि नाउन्स प्लूरल है तो आप आँख बंद के उसके आगे टी एच ई द का यूज़ कीजिए, है ना, उसमें कोई भी रूल्स लागू नहीं होता. सिंगुलर नाउन्स के लिए ही ए और एन का यूज़ किया जाता है. सी, अ बुक, एनी बुक, अ डॉग, कोई भी डॉग, अ कैट, वन कैट, हाउस, one among many houses. Use a or an only for singular nouns. Do not use an article
for a plural indefinite nouns. Okay, think of a plural and identifinate nouns are meaning all, है ना. Students should study hard. All students should study hard. अब इसके आगे हमने आर्टिकल्स नहीं लगाया. सारे स्टूडेंट्स को इसमें बोला है कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक नियम है कि उनको स्टडी हार्ड करनी चाहिए. मीन्स ऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल स्टूडेंट्स, नॉट पर्टिकुलर कि वन स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट्स है उनको ही करनी चाहिए, जो इंटेलिजेंट है तो वो क्या होता है, यदि हम बोलते हैं कि वीक तो वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, बट स्टूडेंट्स नॉर्मल. So if we are using the, it's also right. If you are not using any article before the indefinite plural nouns, that is also correct. See, when to use a or when to use an. Choose when to use a or an according to the sound of the nouns that follows it. Use a before consonant sounds. A book, a bug, a dog, a pencil. Use a before a sounded H along U and O with the sound of W. This is a hat, a house, a uniform, a union, a 1 hour appointment. See, their uniform, unit and 1 hour. ये वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवेल से, बट साउंड क्या आ रहा है बच्चों, साउंड इसके अंदर आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड. ये साउंड, वह साउंड, लॉन्ग साउंड देखो, एंड वह साउंड, यह साउंड. सो वी आर प्लेसिंग हियर अ. यूज एंड बिफोर वॉवेल साउंड्स. expect long U, an assert, an essay, an index, an onion, an umbrella. Use N when H is not sounded. See, hour and honor. HONOUR, honor. We are not saying honor, it's honor. Okay, respect. So we are using an here. Okay students, say I hope you understand this. अब सी यार, डेफिनेट जो आर्टिकल है द, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है. पर्टिकुलर्स मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि हम किस किस के पर्टिकुलर्स, जैसे रिवर्स के नेम्स है, माउंटेन रेंजेस है, प्रॉपर नाउन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, तो उसके आगे हम द यूज करते हैं. लेकिन इसमें पर्टिकुलर सब एक अच्छे से दिए हुए हैं, तो यू जस्ट रीड दिस. सी, बिफोर specific countable and uncountable nouns, singular and plural, the is used. Something or someone already mentioned. Before the superlative degrees. Superlative degrees मैंने आपको बताया था ना, हाँ, बेस्ट है जो कि एडजेक्टिव होती है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव के आगे हमेशा द का यूज़ होता है स्टूडेंट्स. लाइक the most intelligent girl, the best girl in the class, the cleverest girl in the class. Okay, फिर before the musical instruments के आगे भी indefinite articles का यूज होता है. the piano, I love to play the guitar. Okay, the pianos. फिर नेशनलिटीज़, नॉट नेशनलिटीज़, जो कि हमारी जो सिटीजनशिप होती है कि आम एन इंडियन, आम है ना, तो लाइक द ग्रीक्स, द इंडियंस, द फ्रेंच. ओके, फैमिली नेम्स, द ब्राउन्स, द क्लिंटन्स. ओके, द मोदानीज. लाइक जो आपका सरनेम्स होता है, वो फुल जो सरनेम्स होता है उसके आगे हम दा लगाते हैं. फिर होटल्स, और कभी एक एक्सेप्शन भी है कि कोई कभी हम होटल्स के आगे जीरो आर्टिकल लगाते हैं. कुछ होटल्स के आगे जो पर्टिकुलर है उनके आगे दा लगता है. ओके, फिर सिनेमास. ओके, न्यूज़पेपर्स, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, यूनिसेफ. ओके, द बॉय स्काउट्स, द रेड क्रॉस, है ना, द इंडियन सोसाइटी.
द ऑयल एंड नेचुरल गैस, सीज, रिवर्स एंड ओशंस, है ना, जो द अरेबियन सी, द पैसिफिक सी, द गंगा, द जमुना, द इंडस, द पैसिफिक ओशंस, देन डेजर्ट्स, द सहारा, द गोबी, द थार, mountain ranges, the Alps, the Himalayas, the Aravallis, the Satpuras, groups of islands. Islands होते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अपने इंडिया में कौन सा आइलैंड है? यस, अंडमान निकोबार। इधर क्या है? सैक्लोड्स, द सेचेल्स, फिर सम कंट्रीज। ये जो कंट्रीज होती है, जो बहुत सारी कंट्रीज से मिलके बनती है, जिसमें कंट्रीज ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, उस कंट्रीज के आगे हम द लगाते हैं। द यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज आती है, द यूके, द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स एक कंट्री नहीं है, द इट्स ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो उसके आगे हम द लगाते हैं, पर द इंडिया नहीं लगाएंगे बिकॉज इंडिया इज़ द वन कंट्री। सो डेट्स, द 1st of May, जो भी डेट्स होगा, ऑर्डिनल नंबर, द 1 नहीं लगाएंगे, जो ऑर्डिनल नंबर से स्टार्ट होता है उसके आगे हम द लगाते हैं। द फर्स्ट गर्ल, ओके, द सेकंड गर्ल, द 2nd of May, द सेकंड स्टूड। फिर जो आवर्स होते हैं, जो टाइम मेन्यूज रहता है, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, ओके, द नाइट, बिफोर, यूनिक, पीपल एंड थिंग्स, जस्ट यूनिवर्सल थिंग्स होती है, द मून, द सन, students, and the historical places, monuments, the red fort, the Qutub Minar। तो लाइक जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होती है, फेमस बिल्डिंग होती है, उसके आगे हम द लगाते हैं। सी, डेफिनेट आर्टिकल्स, द स्पीकिंग कार्ड्स, इन्वेंशंस, सुपरलेटिव, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल, डबल कंपैरेटिव्स, फिर ये क्या है? countries with plural names, seas and oceans, mountain ranges। so please इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, 2 times इसको पढ़िएगा। यहाँ पे मैं पॉज करके रखती हूँ ताकि you can read nicely in the video। see, अब जो भी inventions है just read it। the computer, then superlative degree में क्या आया यहाँ पे? what is the worst? यार सुपरलेटिव वर्स्ट है, उसके आगे हमने क्या प्लेस किया है? द। अब यूनिक पीपल है, द सन, द मून, यूनिक है ना, दुनिया में एक है जो वर्ड के अंदर फेमस और वन होता है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द। और वी कैन से कि जो यूनिवर्सल थिंग्स होती है उनके आगे भी हम द ही लगाते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, ठीक है ना। शुड पीपल हेल्प ऑफ होमलेस, आर द फेमस हैप्पी, व्हाट आर द रिच अफ्रेड ऑफ, ठीक है। फिर जब हम स्टूडेंट्स देखिए, द का प्रयोग अभी अब हमारे पास वो नहीं है, लेकिन कोई सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में यदि नाउन 2 बार यूज़ होती है, तो यदि फर्स्ट टाइम हम ए प्लेस करते हैं तो सेकंड टाइम हमको द ही यूज़ करना पड़ता है। सी, देयर इज़ ए क्रो, देयर इज़ अ क्रो, मैंने क्रो के आगे आ लगाया, बट द क्रो इज़ ब्लैक, लेकिन सेकंड में आगे मैंने द लगाया है, क्योंकि एक तो मैं स्पेसिफिक उसी क्रो के बारे में बात कर रही हूँ। सेकंड, यदि कोई भी नाउन्स सेंटेंस में सेकंड बार रिपीट होती है तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ होगा, वहाँ पे हम द ही यूज़ करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि कोई भी सेंटेंस में नाउन्स यदि सेकंड टाइम रिपीट होता है तो फर्स्ट टाइम हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम को हमको या थर्ड टाइम हमको द का ही यूज़ करना है। देन डबल कंपैरेटिव, अब यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जहाँ कंपैरेटिव डिग्री 2 टाइम्स आती है तो भी हम द का यूज़ करते हैं। सी, द मोर यू ईट द थिनर यू गेट, द मोर यू अर्न the more you spend, the more you travel, the more you learn। see, here more, 2 times more is a superlative degree, more and most, and here thinner, more and more, second time हम यूज कर रहे हैं तो
we are placing here the. Students, this is the new things, so you just please focus on double comparative degrees. जहाँ दो एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्रीज का यूज़ होता है तो वहाँ हम ता ही लगाते हैं. आगे समझ. फिर ये कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स मैंने पिछले भी बताया था, यूएसए, फिलीपींस, ठीक है. देन सीज एंड ओशंस, ये भी मैंने आपको बता दिया. फिर माउंटेन रेंजेस, जितने भी माउंटेन रेंजेस है उसके आगे हम दा लगाएंगे, ठीक है. ये आप अच्छे से, इसमें मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आई टोल्ड यू, सम कंट्रीज, फिर नेशनलिटीज़ एंड फैमिलीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स, माउंटेन रेंजेस, द ओशन एंड सीज, वन ऑफ काइंड, मतलब जो एक होता है दुनिया में. कितनी अच्छे से स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे से समझाया है. ये सेकंड टाइम से ये वीडियो जा रहा है. आई थॉट कि योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर अबाउट द आर्टिकल्स. बहुत अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा. थोड़ा झूम करती हूँ मैं, झूम करके देखिएगा, पूरा अच्छे से पढ़िएगा कि किस किस के आगे दा आता है, ताकि आप आगे जाके भी कोई मिस्टेक नहीं करो. स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं. हो सकता है कि ये रूल्स आगे जाके थोड़ा चेंज हो जाते हैं, लेकिन अभी जब हम छोटे हैं तो हमारे लिए बहुत काफ़ी है कि हम उसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो हमारे माइंड में क्लियर हो जाए, है ना स्टूडेंट्स. तो आई थिंक कि आज आपको स्पेसिफिक जो नाउन्स दा और इंडेफिनेट जो नाउन्स होता है ए और एन, जो कि इंडेफिनेट और स्पेसिफिक थिंग के आगे जो लगता है, वो हम आपके जो दिमाग में क्लियर हो गया होगा. साइलेंट लेटर्स. मैंने आपको स्टूडेंट्स आपको एक टास्क दिया था लास्ट कि आपको वो लिखना है, ठीक है. आपने क्या किया, वो टाइम फाउंड आउट किए. यस, आई नो यू जस्ट फाउंड आउट. यस, तो हाँ, जब वापस हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं रिटर्न में. साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश. सी, हियर इज अ लिस्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश. Silent B, silent T, silent S, silent K, silent W, silent G, silent U, silent C, silent L, silent P, silent E, silent D, silent A, silent N and silent S. देखिए, ये सारे वर्ड्स स्पेलिंग्स में आते हैं. इंग्लिश भी बड़ी अजीब लैंग्वेज है. हमको लगता है कि यार ये जब वर्ड यूज ही नहीं करने थे तो हमने इन वर्ड्स को क्यों डाला. पर इट्स अ, क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज लैंग्वेज. जो नहीं होता है वो भी इसमें हो जाता है ना. हमारी जो हिंदी गुजराती जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं वो ही हम यूज़ करते हैं. बट इंग्लिश इज़ ए वन काइंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज कि जो होता है वो हम बोलते नहीं हैं, और जो हम बोलते नहीं हैं वो यहाँ पे होता है. इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज, इजंट इट? नो, जस्ट किडिंग स्टूडेंट्स. आप एक बार अच्छे से बैठा लीजिएगा. साइलेंट बी क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था. आप बताओ, आप इसको जल्दी से पढ़िए और आपने कितने वर्ड्स इसमें से फाइंड आउट किए आप नोट कीजिए. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कर लिया ना. दिस इज़ नॉट रिसिप्ट, दिस इज रिसिट. स्कूल में क्या लेने जाओगे, पापा को क्या बोलोगे, रिसिट. क्या? यस, दिस इज रिसिट. आपके घर में प्लम्बर आ रहा है कि प्लम्बर आ रहा है? यस, प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ. दिस इज नॉट प्लम्बर, दिस इज प्लम्बर. What are you eating? Sandwich or sandwich? Yes, this is sandwich. Yes, we can improve. When we are talking a good vocabulary, so it affects on other people. कि yes, the banda, yeah, the student is know about the words. Okay, तो इसके लिए हमें पढ़ना है. ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं. मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड्स, 3 वर्ड्स बताए थे और आपको एक टास्क दिया था कि आपको फाइंड आउट करना है. और अभी मैं आपको बहुत अच्छे से लिस्ट दे रही हूँ. ये सारी लिस्ट आपको एकदम अच्छे से पढ़नी है, और उसके बाद में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप एकदम, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो ही आप अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे. यू विल यूज़ द correct pronunciation in your English language. Understood students? Very wow. I hope आपने ये पढ़ लिए होंगे.
Okay, students? Okay, students. Now, students, I hope you understood the concept of articles and the concept of silent letter words. So I finish my video here only, and hope your remove your queries and something. If you are having any doubts, you can call me. But students, please call me with very good doubt. Okay, call me with very good doubt. And students, sometimes if you want to meet, so we can come in D&D, not in a group, but sometimes you can come, yeah, you can inform to us, so we can come to D&D, and we can use, we can remove your doubts and queries. Students, एक करती हूँ कि शायद आप वीडियोस बहुत कम देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियोस आपको देखना है तो ही आप, मुझे मालूम है आपको आर्टिकल्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जब आप ढूंढने जाएंगे बाहर, जो कि एक टेक्नोलॉजी वाइज हाँ अच्छे वीडियोस होते हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। पर स्कूल का वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। और स्टूडेंट्स, आप वीडियोस का व्यूज़ बढ़ाइए, आप अपने देखिए, अपना स्कूल का वीडियो है, सो प्लीज़ जस्ट वॉच आवर वीडियो एंड गिव अस अ 1 like.